as per the directions given us to continue by the state level, we are having the directions again and again to continue our studies based on online classes. So we are here for our studies, as you can see here, and I want to give you the best, being a principal, but before principal I'm a teacher, and before teacher I'm a student. So this is my duty to give you the best out of the waste, right? The conditions are adverse, as we know all, but we have to focus on our aim, and our aim is to provide the best education, and the best is here that I am trying my level best to give you. The first poem, Character of a Happy Life, as we were having done yesterday, we are continuing it to share the appreciation of the poem. This is the appreciation of the poem, The Character of a Happy Life. Character of a Happy Life. The poet's name is Sir Henry Wotton, as you know. So here, Character of a Happy Life is didactic poem composed by Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton's poem inspires us to adopt a way of life marked by true freedom of thoughts and action, righteousness, honesty, faith, and simplicity. So here we can find the very simple points to be happy. The poet is giving us the points, and we have to focus that our life should be based and marked with these qualities, which is divine qualities. We don't have to buy it in the world. That is inside us, that we can have freely from our God Almighty. So we have to follow it, we have to focus it, and we have to practice it. The truth, we have to follow the truthfulness in our lives, and we have to have the freedom of thoughts. Whatever we think, we should have such courage to express it. True thoughts should be expressed without any fear, without any confusion. We should have the freedom of thought to clear it and to express it. And the second is the action of righteousness, honesty, faith. We have to follow the righteousness. We have to follow the right path in our lives, and with all the honesty. Honesty is the best policy, as we know. So we have to be honest with ourselves. We have to be honest with others. We have to be honest with our country, with our relationships. So we have to be focused in this, that honesty, truthfulness, and the freedom of thought and righteousness. These all are the qualities which is the base of the character of a happy life. We know this, and we come forward. In the same sequence, we find simplicity, simple living and high thinking. We know that Gandhiji says, Sada Jivan Uch Vichar. So the same thing we find here, Sir Henry Wotton says that we have to live a very simple life. Simplicity is one of the key notes to become happy man. So if we want to live a happy life, we have to follow the simplicity and simple ways in our life. We don't have to make our life complicated. If we live our life simple, we can live a happy life. And the other thing we can see here, this poem is written in smooth, flowing and sonorous verses. It has a rhyme scheme. As
Previously, I discussed with you that poems are always having a rhyme scheme. And here we find it is divided in 6 stanzas with a rhyme scheme of A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, so my children, my dear children, here we find the art of living. How can we make our life happy? How can we become so satisfied in our lives? So these all are the points, and this is the appreciation of the poem that you can see, you can learn, you can study, that the poem is based upon all such points, and you can elaborate it, you can complete the question and answers with this thought, and you can understand the basic things of this poem. Okay, so I hope so. It is quite in continuation. If you want to ask anything, if there is any doubt, you can ask. I am always free for you. See the poem, I am giving you all the notes. I am continuously in touch with you. So feel free to talk to me and to express your problems and your doubts. जो बच्चों को इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा हो, तो मैं उनको थोड़ा सा हिंदी में भी बताने के लिए प्रयास करती हूँ। यहाँ पर कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कवि का नाम दिया गया है सर हेनरी वॉटन, और इस कविता में हम देखते हैं कि कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, और हैप्पी लाइफ मीन्स खुश जीवन। हर इंसान आज की दुनिया में खुश रहना चाहता है। सो यहाँ पर हमको एक बहुत अच्छा आइडियाज़ मिलते हैं कि हम कैसे अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि पोएट ने, कवि ने पूरा हमको एक सार दिया है, जिसे हम जीवन जीने की कला कह सकते हैं, कि अगर हम इस पोएम को अपने जीवन में फॉलो करते हैं और इस पॉइंट्स को हम अपने जीवन में व्यवहारिक तौर पर ग्रहण करते हैं, तो हम भी कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ के सारे उन गुणों को पा के अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। बिकॉज खुशी जो है वो हमें बाहर की चीज़ों में दिखती है, मगर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि खुशी बाहर की दुनिया में नहीं है, वो हमारे भीतर है, विद्यमान है, ईश्वर ने दिया है उसे हमें। और वो इन गुणों के द्वारा, जो ईश्वरीय गुण हैं, जो हमें दुनिया में खरीदने से नहीं मिलेंगे, उनके द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं या उसको हम महसूस कर सकते हैं। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज़ हियर वी कैन फाइंड कि ये एक ऐसी कविता है जो बनाई गई है, रची गई है रचयिता सर हेनरी वॉटन के द्वारा। और इस पोएम को का जो मोटिवेशनल सोर्स है वो हम देखते हैं कि वो इसलिए है कि एक मनुष्य प्रेरणा बन सकता है अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, और वो कई सारे गुण हैं जिनके द्वारा हम अपने भीतर अपने उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो ईश्वर ने हमें दिया है, जिसमें है सत्य, विचारों की आज़ादी, और जो भी हम कार्य करते हैं वो सच्चाई के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें और विश्वास के साथ करें। अगर हम विश्वास पात्र बनते हैं, अगर हम सच्चाई को फॉलो करते हैं, ईमानदार रहते हैं और अपने जीवन में ईमानदारी अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी रखते हैं, सच्चाई अपने साथ भी रखते हैं और दूसरों के साथ भी रखते हैं, वही आयाम हम अपने लिए रखते हैं, वही हम दूसरे के लिए रखते हैं और सादगी के साथ रहते हैं। गांधी जी ने कहा सत्य और अहिंसा और प्रेम, वही बोला कि सादा जीवन उच्च विचार। तो यहाँ पर वो सादे जीवन को हम देखते हैं सर हेनरी वॉटन की पोएम में। सिंप्लिसिटी मीन्स सादगी, और वो सादगी का जीवन अगर हम जीते हैं, विश्वास पात्र बन के जीते हैं, ईमानदारी के साथ जीते हैं और सच्चाई के साथ जीते हैं, सही मायने में सही तरीका अपनाते हैं अपने जीवन जीने का, तो हमारे ये सारे गुण हमको प्रसन्नचित रखेंगे, हमको एक खुशहाल जीवन जीने के लिए इंस्पायर करेंगे, प्रेरणा देंगे। और इसके लिए हम देखते हैं कि इस
पोएम की कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये पोएम जो रची गई है वो बहुत ही एक फ्लॉलेसली और एक बहुत ही स्मूथ वे में बनाया गया है, जिसमें एक स्कीम लय दी गई है। जैसे हम देखते हैं ना कि हर चीज़ की एक लय होती है, गीत संगीत की एक लय होती है। तो दिस इज़ अ वेरी म्यूजिकल पोएम। अगर हम उसे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो उसका आखिरी शब्द है उसकी तालमेल दूसरी शब्द से भी मिलते हैं। और आप लोग भी बच्चों पूरा समझने की कोशिश की होगी, या मैंने भी पूरा प्रयास किया है आप लोगों को अपना बेस्ट देने का। अगर फिर भी कोई समस्या आपको आती है इस पोएम को समझने में तो प्लीज़ आई एम फ्री फॉर यू। आप कभी भी मेरे से अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें। डोंट हेजिटेट, दिस इज़ इंग्लिश लिटरेचर, दिस इज़ नॉट आवर मदर टंग। सो प्रॉब्लम इज़ अ नेचुरल फेनोमेना। प्रॉब्लम्स तो आती हैं, मगर हम उसे नज़रअंदाज अगर करते हैं तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो व्हाइल वी हैव द प्रॉब्लम वी शुड टॉक। बात करने से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। तो इसलिए यदि आपको इन पोएम्स में या कहीं भी स्टडीज़ में कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो यू शुड टॉक टू अस। आपको हमसे बात करनी पड़ेगी, हमें बात करनी चाहिए। और साथ ही आप देखते हैं हमारे इन ग्रुप्स में बहुत सारे आपके सब्जेक्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। उन सभी टीचर्स को भी मैं बोलूँगी कि अपने घर में अपना एक निश्चित समय निर्धारित करें और उसी निर्धारित समय पर बच्चों को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक चार्ट पेपर बना लें, या जो भी आपके पास वॉल हो डार्क कलर की, या किसी भी तरीके से बच्चों को थोड़ा विजुलाइज करते हुए पढ़ाइए। बिकॉज दीज पॉइंट्स शुड बी वेरी क्लियर टू दैम। उनको जब तक रीडिंग और राइटिंग और लिसनिंग ये 3 मेथड से हम नहीं पढ़ाएंगे तो उन बच्चों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसा हम जानते हैं कि ये इस समय एक संक्रमण काल में हम जी रहे हैं, जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमारे पास हैं। तो मैं अपनी टीचर्स से, अपने स्टाफ से ये अपील कर रही हूँ कि इस ऐसी घड़ी में जब हमारे देश में हर कोई अपना कर्तव्य निभा रहा है, डॉक्टर्स, पुलिस, सारे बड़े बड़े अधिकारी, हमारे मिनिस्टर्स, ऑनरेबल ऑफिसर्स, सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ को जब इतना जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं तो हमें भी अपने को थोड़ा इनोवेटिव होते हुए सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को क्या बेस्ट दे सकते हैं, किस तरीके से। जैसे हम किचन में थोड़ा सामान होता है मगर फिर भी बेस्ट डिश बना लेते हैं, वही टेस्ट डेवलप करना होगा हमें आज के इस समय में, इस चैलेंजिंग टाइम में जब हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग के पास घर में बुक्स नहीं होंगी, आप लोग के पास घर में इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, चौक नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो नहीं होंगी जिससे हम पढ़ाते हैं। मगर लाइक अ वॉरियर, लाइक अ सोल्जर, वी ऑल आर सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री। और हम एक फ्यूचर सिटीजन को माइंड, कीप इट इन योर माइंड दैट वी आर ट्रेनिंग टू द फ्यूचर सिटीजन्स। ये बच्चे कल का भविष्य है हमारे देश का, तो हमें उनके लिए कुछ भी करना पड़े मगर उनको एक क्लियर पिक्चर ऑफ द सब्जेक्ट देना हमारा कर्तव्य भी है और हमारे देश के प्रति एक सच्ची सेवा भी है। तो प्लीज़ यू कम फॉरवर्ड एंड डोंट हेजिटेट। दिस इज़ द हाई टाइम टू शो you are the best.